Hello everyone, this is Radhika. Welcome to Chapter Hunt. In today's session, we will continue Class 7 Geography Chapter 2 Inside Our Earth. In part 1 video of this chapter, we discussed question and answers relating to the Earth, the 3 layers of Earth, their mineral constituents, and we also covered rocks, types of rocks, and their formation. In today's session, we will study the remaining questions from this chapter, few differences which can be asked in your examination, and also I'll provide you with fill in the blanks. And yeah, if it is your first time here, you know what to do. Hit the subscribe button and also the notification bell to be notified every time I upload videos every Monday and Thursday. So let's get started. The first question in this video, it says, what are the uses of rocks? Rocks के क्या uses हैं? Rocks are very helpful to us. The hard rocks are useful for making roads, houses and buildings. Stones are used in many games such as 7 stones pittu, hopscotch that is tapu, या 5 stones that is gitte. Rocks are used in building bridges, embankments, etc. अब rocks के बहुत जगह यूज़ होता है. रोड्स में, हाउसेज में, बिल्डिंग्स बनाने में rocks यूज़ होते हैं. हार्ड वाले जो rocks होते हैं, we use those rocks for making all these things. Stones are also used in playing games. Now अगर आपने कभी नहीं खेले हैं, आज आप just ask your parents, maybe your grandparents also, उन्होंने ये गेम ज़रूर खेली होंगी. पिट्ठू, स्टैपू, गिटे, जिसमें कि हम 5 स्टोन से खेलते थे. तो आप आज पूछना, it will be very interesting and they'll also tell you how to play these games. Rocks are also used in building bridges or embankments वगैरह. Now coming to our next question, what are minerals? How are they useful for mankind? Rocks are made up of different minerals. बहुत अलग अलग तरह के बहुत सारे minerals से rocks बने हुए होते हैं. Minerals क्या होते हैं? Minerals are naturally occurring substances which have certain physical properties and definite chemical composition. Minerals are very useful for mankind. अब minerals का basic है कि minerals जो हैं, it is कोई भी ऐसी चीज़ जो nature में मिलती है. और एक तो इसमें carbon नहीं होता है. It has its some physical properties भी होती हैं. एक उसका एक definite chemical composition से ही बना जाता है. बहुत डिटेल में it is not up to your class level. So just write this definition किया. इसमें एक physical properties भी होती हैं और एक definite chemical composition से minerals बने जाते हैं. और minerals जो हैं, they are very important for mankind. कैसे? Some are used as fuels, जैसे coal, natural gas, petroleum. They're also used in industries, जो कि आपको पता है, iron, aluminium, gold, uranium, and they are used in medicines and in fertilizers. So all these are few uses which can be described in your answer if they ask you what are the uses of minerals. Now coming to a very important question from this chapter. What do you mean by a rock cycle? This actually आपको I gave a brief idea in my earlier video of this chapter कि rock cycle का मतलब क्या होता है. The process of transformation of the rock from one to another type under certain conditions in a cyclic manner is known as rock cycle. प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज होने का प्रोसेस, एक रॉक से दूसरे रॉक में बनने का प्रोसेस, और वो भी एक साइक्लिक मैनर में ही बनता है. उसी साइकिल में वो बनता है, उसी फॉर्मेशन में ये रॉक्स बनते हैं. इनको हम लोग बोलते हैं रॉक साइकिल. जैसे अब इसमें अगर आपको इफ़ यू ड्रॉ दिस डायग्राम, इट एक्चुअली गिव्स यू मच मोर मार्क्स अगर आप ये भी साथ में बना देते हैं, इवन इफ इट इज़ नॉट आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन. तो इसको कैसे आप बनाओगे? मैग्मा आपको पता है, हमने क्या पढ़ा था? मैग्मा इज़ द मॉल्टन रॉक ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट, जो कि पिघला हुआ फॉर्म होता है. वो जब सॉलिडिफाई हुआ, हार्ड हुआ, वो किस में बन गया? इग्नियस रॉक में. इसलिए मैग्मा से एक एरो आता है इग्नियस रॉक से. अब इग्नियस रॉक्स का हम सब ने पढ़ा था कि सेडिमेंट्स क्या होता है कि जैसे हवा से, पानी से, जब ये जो होते हैं छोटे बर्फ़, पानी, बर्फ़, किसी भी वजह से इन पत्थरों में क्रैक आ जाता है और हवा इनको उड़ा के दूर कहीं ले जाती है. तो ये जो चीज़ें इकट्ठी होती हैं, इनको हम बोलते हैं सेडिमेंट्स. अब इनकी जब इनसे जो इन सेडिमेंट से एक के ऊपर एक लेयर बन जाती है, उससे क्या बन जाते हैं? ये सेडिमेंट्री रॉक्स.
Now, igneous rock से you can see one arrow is coming from igneous rock and one is also coming from sedimentary rocks. What does this explain us? That igneous rocks और sedimentary rocks दोनों ही rocks under different climatic conditions, बहुत ज़्यादा heat या pressure में इसको गर्मी या pressure में change हो जाता है. तो igneous और sedimentary rocks ये दोनों ही किस में change हो जाते हैं? Metamorphic rocks में. और अब मेटामॉर्फिक रॉक्स का क्या होता है? मेटामॉर्फिक रॉक्स का मतलब मैंने बताया था, इट मीन्स अ चेंज्ड फॉर्म. ये एक फॉर्म चेंज्ड फॉर्म है. नेचर फिर से वैसे ही वर्क करती है. फिर से जब ये लावा जो होता है, ये मेटामॉर्फिक रॉक जब एंड में फिर से ये लावा में मिक्स हो जाता है. जब ये लावा में मिक्स हो गया, फिर वो लावा जो है वो पिघला हुआ मैटर है, वो सॉलिडिफाई करेगा, वो फिर इग्नियस रॉक में बन जाएगा. दैट मीन्स द साइकिल कीप्स ऑन मूविंग. अब इसको आप आंसर में कैसे लिखोगे? देखो, just write in pointer forms. Molten magma cools down and solidified to form igneous rocks. Molten magma ठंडा हुआ, solid की form में वो igneous rock बन गया. These rocks are broken down due to pressure and heat into sediments. बहुत तेज़ heat और pressure की वजह से ये जो rocks हैं ये किस में break हो जाते हैं? Sediments में. These are transported and deposited to form sedimentary rocks. अब इनको दूर हवा पानी कहीं भी इनको ले जाती है और डिपॉजिट कर देती है, और वो जब लेस के ऊपर लेस करके इस तरीके से जो फॉर्म में होते हैं रॉक्स, उनको बोलते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक्स. अब इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स अंडर हीट एंड प्रेशर चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक. अब दोनों ही इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स बहुत तेज़ हीट और प्रेशर की वजह से किस में चेंज हो जाते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक में. द मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म मॉल्टन मैग्मा. अब ये फिर से मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है मॉल्टन मैग्मा पिघले हुए फॉर्म में पलट गया. दिस अगेन कूल्स डाउन टू फॉर्म इग्नियस, और जब ये ठंडा होगा ये फिर क्या हो जाएगा? सॉलिडिफाई हो जाएगा और क्या बन जाएगा? इग्नियस रॉक्स. नाउ दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंजिंग ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड अ रॉक साइकिल. अंडरस्टूड? कई बार आपको डिफरेंसेस भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, एंड डिफरेंसेस एज आई ऑलवेज टेल यू, मेक एफर्ट टू राइट इट इन टैब्यूलर फॉर्म. इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सबसे पहले आप क्या बताओगे? द वर्ड इग्नियस कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड इग्निस, हमने करा था, जिसका मतलब क्या होता है? फायर. मेटामॉर्फिक रॉक, द वर्ड मेटामॉर्फिक कम्स फ्रॉम द वर्ड मेटामॉर्फ, इसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म. अब इसके बाद इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? दे आर फॉर्म्ड व्हेन द मॉल्टन मैग्मा कूल्स एंड बिकम्स सॉलिड. और मेटामॉर्फिक रॉक का कैसे बनता है? दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू ग्रेट हीट एंड प्रेशर ओवर इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स. थर्ड एग्जाम्पल अब आपको इसको लिखना हो, दोनों के एग्जाम्पल्स बता दो. जैसे बेसाल्ट और ग्रेनाइट आर इग्नियस रॉक्स एंड मार्बल स्लेट आर मेटामॉर्फिक रॉक्स. रॉक्स और मिनरल्स में भी डिफरेंस पूछा जाता है. सो फर्स्ट व्हाट वी विल राइट द डेफिनेशंस, रॉक की भी एंड मिनरल की भी. रॉक्स आर द सॉलिड सब्सटेंसेस विच मे हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर दैन वन मिनरल. जिन रॉक्स में मतलब दे आर ट्राइंग टू टेल दैट रॉक्स आर सॉलिड सब्सटेंसेस, पर इनमें एक से ज़्यादा मिनरल पाए जाते हैं. और मिनरल्स, दीज आर सब्सटेंसेस दैट अकर नेचुरल, जो नेचर में पाया जाता है उसको हम लोग मिनरल्स बोलते हैं. रॉक्स डू नॉट हैव अ डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन, अब हमने पढ़ा, बट मिनरल्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती है और उनका एक डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन से ये मिनरल्स बनते हैं. नाउ अगेन रॉक्स और मिनरल्स में भी थर्ड पॉइंट में आप दोनों के एग्जाम्पल्स बता दो. रॉक्स में आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, इग्नियस का भी, सेडिमेंट्री का भी, जो आपको याद रहता है उस टाइम, मार्बल, स्लेट, लाइमस्टोन, एनीथिंग. मिनरल्स में कोल, एल्यूमिनियम, कोल. आई हैव रिटन दिस. आपको कोई और एग्जाम्पल्स याद है? यू कैन गो फॉर दैट एंड राइट दोज एग्जाम्पल्स. इट इज जस्ट दैट आई वांट टू एक्सप्लेन कि थर्ड पॉइंट, आप 3 पॉइंट्स दे रहे हो, थर्ड पॉइंट में आप दोनों का एग्जाम्पल डिस्क्राइब कर दो. नाउ अ रीजनिंग क्वेश्चन कैन ऑल्सो कम, जिसमें कि आपसे पूछा जाता है कि गिव रीजंस व्हाई वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ. आप एकदम सेंटर के अर्थ में क्यों नहीं जा सकते? To reach the center of the earth, one will have to dig a hole 6,000 kilometers deep on the ocean floor, and this is quite impossible, and therefore we cannot go to the center of the earth. हमने सारी layers of earth का depth पढ़ा था, तो उससे we remember कि yes, अगर हमें center of earth तक जाना है, then we need to dig how much? 6,000 kilometers deep. Then only we can be able to reach the center of the earth, and that is next to impossible. Because आपने पढ़ा होगा कि जो हमारी जो deepest mine in the world है वो सिर्फ
4 किलोमीटर्स डीप है साउथ अफ्रीका में, एंड दैट इज़ द डीपेस्ट माइन. अब आप देखो 4 किलोमीटर की जो माइन जितनी हम डिग कर पाए हैं अब तक, दैट इज़ द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड, जो कि साउथ अफ्रीका में है. तो हाउ इट इज़ पॉसिबल टू डिग a hole and go 6,000 kilometers deep and then reach the earth? And they can also be, you can also add one more reason कि इतना heat और अंदर pressure होगा, उसमें इतना temperature होगा अंदर कि obviously it is not possible for us to dig and go inside our earth, center of earth के बीच में हम नहीं जा सकते हैं. अब इसमें दे कैन ऑल्सो बी लॉन्ग क्वेश्चंस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड, लाइक जैसे अगर आ जाता है डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स इन डिटेल, तो इसमें जो हमने अलग अलग आंसर्स, जो हमने पार्ट 1 वाला आपका जो इस वीडियो बनाया था हमने इस चैप्टर का, उसमें से अगर आप देखोगे तो इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, उन सबको कंबाइन करके आप इसमें आंसर में डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ तीनों रॉक्स के बारे में डिटेल में बता दोगे कि वो कैसे फॉर्म होते हैं. एक्सप्लेन बेसिक फीचर्स ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. अब इंटीरियर ऑफ द अर्थ में आपको पता है क्रस्ट, मैंटल, कोर, हमने उसमें शॉर्ट फॉर्म में और छोटे छोटे क्वेश्चन हमने क्रस्ट के बारे में भी पढ़ा है, मेंटल के बारे में भी. आई हैव गिवन यू एवरीथिंग इन द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, और कोर के बारे में भी. नाउ अगर आपसे एक कंबाइंड अच्छा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ऑफ से 4 to 5 मार्क्स, तो आप क्या करोगे, you will describe कि yes 3 layers of earth are crust, mantle, core, and then explain जो हमने crust का आंसर लिखा है वो crust का, then mantle का and core का combined answer आप लिख दो. And now explain the entire process of transformation of the rock from one to another. तो इसमें you don't get confused कि ये कौन सा question है. This is another way of asking what is the rock cycle. तो वही आंसर इसके अंदर आएगा. एक क्वेश्चन रीजनिंग का भी पूछ सकते हैं, कभी एक एग्जामिनेशन में पूछा गया था, गिव रीजन लाइमस्टोन चेंजेस इनटू मार्बल. यस वी नो दैट लाइमस्टोन इज अ सेडिमेंट्री रॉक, इट चेंजेस इनटू मार्बल which is a metamorphic rock under great heat and pressure. So what is the basic point I want to tell you in this reasoning is कि you have to tell that limestone is a sedimentary rock, and we know that sedimentary rocks and also igneous rocks under heat and pressure they change into metamorphic rock. और हम बताएंगे कि limestone sedimentary rock है और marble जो है metamorphic rock है, और ये change क्यों हुआ, because of heat and pressure. Like अगर आपको reasoning भी देना है तो you have to add these 3 main points in your answer कि लाइमस्टोन कौन सा रॉक है, मार्बल कौन सा रॉक बना और वो कैसे चेंज हुआ. सो ओके, नाउ आई एम गिविंग यू सम मोर एडिशनल क्वेश्चंस ताकि आपका 1 मार्क वाली भी कहीं से यू डोंट लूज एनी मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन. इट्स जस्ट अ रिविजन, आपको ये सारा आता होगा बस, इसलिए यू कैन जस्ट गो थ्रू इट. Dash rocks are also called primary rocks. We know igneous rocks. Gold, petroleum, coal are examples of dash minerals. The thinnest layer of the earth is, we know this, the हमारी सबसे पहली जो बाहर की लेयर होती है crust. Now Deccan Plateau is made up of, हमने ये पढ़ा था जब हम formation पढ़ रहे थे, तो Deccan Plateau is the example of basalt rocks. Basalt rocks किसका example है, igneous का. The Taj Mahal is made up of, ताज महल किससे बना हुआ है, white marble का. Next is fossils are the remains of dash. Fossils किसके remains हैं, fossils are the remains, just a minute, yeah. One thing beta, Deccan Plateau is made up of basalt rocks. Basalt rocks का it is made up of the basalt rocks कौन से होते हैं, basalt rocks are igneous rocks. इसमें आप ये ज़रूर याद रखना बिकॉज कई बार ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि basalt rocks का एग्जाम्पल क्या है, basalt और Deccan Plateau कौन से रॉक्स का बना हुआ है. अगर आपको कई बार MCQ में आ जाए igneous से sedimentary, तो आपको याद रखना है कि वो igneous rocks हैं, तो तब मतलब it should be very clear in your mind. Now yeah, continuing with this, fossils are the remains of dead plants and animals. The metamorphic rocks are formed under influence of dash, that is we know this, high temperature and pressure. Now dash rocks turn into metamorphic rock. इसमें be very careful कि igneous और sedimentary दोनों ही आप describe करोगे कि yes igneous and sedimentary both rocks change into metamorphic rocks. कई बार ये MCQ में दे देते हैं which rocks change into metamorphic, उसमें आपको लिखेंगे igneous, फिर लिखेंगे sedimentary, फिर उसके बाद लिखेंगे none of these या एक लिख देंगे both. तो आपने क्या बताना है, both कि yes both of these rocks change into metamorphic rocks. Then the process of transformation of rocks from one to another is called dash, it is called a rock cycle. Now the term extrusive and intrusive are used in the reference of igneous rocks. Yes, हमने पढ़ा था igneous rocks के 2 types होते हैं, extrusive and intrusive rocks. Now there is an outer and inner dash in the interior of the earth. There is an outer and inner core in the interior of the earth.
Dash have a certain chemical composition and physical properties. अब तक आपको याद हो गया, it is minerals. The common mineral in the continental masses and the ocean crust is सिलिकॉन. दोनों में आपने हमने यू रिमेंबर हमने ये वाला पूरा पढ़ा था कि किस में कौन कौन से मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स फाइंड होते हैं. तो उसमें जो कॉमन है उन दोनों में कौन सा कॉमन होता है? सिलिकॉन. तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि सिलिकॉन इज कॉमन इन बोथ ऑफ देम. एंड देन द रॉक्स विच इज मेड अप ऑफ मॉल्टन मैग्मा. मॉल्टन मैग्मा से क्या बनते हैं? कौन से रॉक्स? इग्नियस रॉक्स. बिकॉज द मॉल्टन मैग्मा जब सॉलिडिफाई होता है तो वही इग्नियस रॉक्स को बनाता है. रॉक्स विच कंटेन फॉसिल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक. हमने ये पढ़ा था कि कौन से रॉक्स में फॉसिल पाए जाते हैं. दैट इज द सेडिमेंट्री रॉक्स. Now next is sandstone is made from grains of dash. Sandstone is made up of grains of sand. Our earth is constantly undergoing changes dash and dash. हमारी earth में changes होते रहते हैं inside as well as outside. Now the earth is made up of several dash concentric circles, that is which is one inside the other. एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर circle. हमारी earth उस तरह से बनी हुई है. The innermost layer is made up of nickel and iron and it is called Nife. अब इन्होंने इसको क्या कर दिया? कोर नहीं बोला, innermost layer बोल दिया. So don't get confused. अगर आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है then it will not be difficult for you because we know the innermost layer is the core. और core किससे बना हुआ है? Nickel and iron and that is called Nife. The radius of earth आपने करा था, it is 6371 kilometers. Now the deepest mine in the world is in South Africa. अभी I told you कि deepest mine कहाँ पे है? South Africa में. और कितना depth है उसका? It is about 4 kilometers. So remember both things, ये दोनों चीज़ें कि deepest mine है कहाँ पे और उसका depth कितना है. And the red fort is made up of dash. Red fort is made up of redstone. So this brings to an end of our geography chapter 2. So did you find this helpful? If so, make sure to hit the like button and share with somebody who you think this could be helpful. I will see you on the another video very soon. Take care. Bye bye.